رات کا آخری پہر تھا جب زکوئی صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے نکلی۔ ناجی کے خیمے میں جانے کے بجائے وہ دوسری طرف چلی گئی۔ راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا جس کا جسم سر سے پاؤں تک ایک ہی لبادے میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں زکوئی کو پکارا۔ وہ اس آدمی کے پاس چلی گئی۔ وہ آدمی اسے ایک خیمے میں لے گیا۔ بہت دیر کے بعد وہ اس خیمے سے نکلی اور ناجی کے خیمے کا رخ کیا۔ ناجی اس وقت تک جاگ رہا تھا اور کئی بار باہر نکل کر صلاح الدین ایوبی کے خیمے کو دیکھ چکا تھا کہ زکوئی نے صلاح الدین ایوبی کو پھانس لیا ہے اور اسے آسمان کی بلندیوں سے گھسیٹ کر ناجی کی ذہنیت کی پستیوں میں لے آئی ہے۔ اس نے کہا، اور وش رات تو گزر گئی ہے، وہ ابھی تک نہیں آئی۔ اور وش نے کہا، وہ اب آئے گی بھی نہیں۔ امیر مصر اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ایسے ہیرے کوئی شہزادہ واپس نہیں کیا کرتا۔ تم نے اس پر بھی غور کیا ہے؟ ناجی نے کہا، نہیں، میں نے اپنی چال کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اور وش نے کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر مصر زکوئی کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے؟ اس صورت میں یہ خطرہ ہے کہ لڑکی ہمارے کام کی نہیں رہے گی۔ ناجی نے کہا، وہ ہے تو ہوشیار، مگر رقاصہ کا کیا بھروسہ؟ وہ رقاصہ کی بیٹی ہے اور تجربہ کار پیشہ ور ہے، دھوکہ دے سکتی ہے۔ وہ گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ زکوئی اس کے خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہنس کر کہا، اپنے امیر کے جسم کا وزن کرو اور لاؤ اتنا سونا۔ آپ نے میرا یہی انعام مقرر کیا تھا نا؟ ناجی نے بے تابی سے پوچھا، پہلے بتاؤ ہوا کیا؟ زکوئی نے جواب دیا، جو آپ چاہتے تھے۔ آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی پتھر ہے، فولاد ہے اور وہ مسلمانوں کے اللہ کا سایہ ہے؟ اس نے زمین پر پاؤں کا ٹھڈ مار کر کہا، وہ اس ریت سے زیادہ بے بس ہے جسے ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے اڑاتے پھرتے ہیں۔ اور وش نے کہا، تمہارے حسن کے جادو اور زبان کے طلسم نے اسے ریت بنایا ہے، ورنہ یہ کمبخت چٹان تھا۔ زکوئی نے کہا، ہاں چٹان تھا، اب ریتیلا ٹیلا بھی نہیں ہے۔ ناجی نے پوچھا، میرے متعلق کوئی بات ہوئی تھی؟ زکوئی نے جواب دیا، ہاں۔ پوچھتا تھا ناجی کیسا آدمی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ مصر میں اگر کسی پر آپ کو اعتماد کرنا چاہیے تو وہ صرف ناجی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم کس طرح اسے جانتی ہو؟ میں نے کہا کہ وہ میرے باپ کے گہرے دوست ہیں، ہمارے گھر گئے تھے اور میرے باپ سے کہتے تھے کہ میں صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوں، مجھے سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو کود جاؤں گا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم باعصمت لڑکی ہو؟ میں نے کہا کہ میں آپ کی لونڈی ہوں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ کہنے لگا، کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر وہ اگر پتھر تھا تو موم ہو گیا اور میں نے موم کو اپنے سانچے میں ڈال لیا۔ اس سے رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ کہنے لگا، میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ گناہ نہیں، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، مجھے بادشاہوں کی طرح حکم دے کر نہیں بلایا، میں خود آئی تھی، پھر بھی آؤں گی۔ لڑکی نے ہر ایک بات اس طرح کھل کر سنائی جس طرح اس کا جسم اریاں تھا۔ ناجی نے جوش مسرت سے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا اور وش زکوئی کو خراج تحسین اور ناجی کو مبارکباد پیش کر کے خیمے سے نکل گیا۔ صحرا کی اس پرسرا رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ کسی بھی صحرائی صبح سے مختلف نہیں تھی، مگر اس صبح کے اجالے نے اپنے تاریک سینے میں ایک راز چھپا لیا تھا جس کی قیمت اس سلطنت اسلامیہ جتنی تھی جس کے قیام اور استحکام کا خواب صلاح الدین ایوبی نے دیکھا اور اس کی تعبیر کا عزم لے کر جوان ہوا تھا۔ گزشتہ رات اس صحرا میں جو واقعہ ہوا اس کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو سے صرف ناجی اور وش واقف تھے، دوسرے پہلو سے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ واقف تھا، اور صلاح الدین ایوبی اس کا سراغ رساں اور جاسوس علی بن سفیان اور زکوئی، تین ایسے افراد تھے جو اس واقعے کے دونوں پہلوؤں سے واقف تھے۔ صلاح الدین ایوبی اور اس کے سٹاف کو ناجی نے نہایت شان و شوکت اور عقیدت مندی سے رخصت کیا۔ سوڈانی فوج دو رویا کھڑی صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے نعروں کے جواب میں بازو لہرانے، مسکرانے اور دیگر تکلفات کی پرواہ نہ کی۔ ناجی سے ہاتھ ملایا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے اس کے محافظوں اور دیگر سٹاف کو بھی گھوڑے دوڑانے پڑے۔ اپنے مرکزی دفتر میں پہنچ کر وہ علی بن سفیان اور اپنے ایک نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہے۔ سورج غروب ہوا، رات تاریک ہو گئی۔ کمرے کے اندر کھانا تو درکنار پانی بھی نہیں گیا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب تینوں باہر نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظوں کے دستے کے کمانڈر نے اسے روک لیا اور کہا، محترم، ہمارا فرض ہے کہ حکم مانیں اور زبانیں بند رکھیں۔
लेकिन मेरे दस्ते में एक मायूसी और बेइत्मीनानी पैदा हो गई है। खुद मैं भी उसका शिकार रहा हूँ। अली बिन सफियान ने पूछा, कैसी मायूसी? कमांडर ने कहा, मुहाफिज कहते हैं कि एक फौज को शराब पीने की इजाजत है, तो हमें उससे क्यों मना किया गया है? अगर आप मेरी शिकायत को गुस्ताखी समझें तो सजा दे दें, लेकिन मेरी शिकायत सुन लें। हम अपने अमीर को खुदा का बरगुज़ीदा इंसान समझते थे और उस पर दिलो जान से फिदा थे, मगर रात। अली बिन सफियान ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, रात उसके खैमे में एक रक्कासा गई थी। तुमने कोई गुस्ताखी नहीं की। गुनाह अमीर करे या गुलाम, सजा में कोई फर्क नहीं। गुनाह बहरहाल गुनाह है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि रक्कासा और अमीर मिस्र की खुफिया मुलाकात के साथ गुनाह का कोई ताल्लुक नहीं था। ये क्या था अभी नहीं बताऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ तुम सबको मालूम हो जाएगा कि रात को क्या हुआ। उसने कमांडर के कंधे पर हाथ रख कर कहा, मेरी बात गौर से सुनो आमिर बिन सौलेह, तुम पुराने अस्करी हो, अच्छी तरह जानते हो कि फौज और फौज के सरबराहों के कुछ राज होते हैं जिनकी हिफाजत हम सबका फर्ज है। रक्कासा का अमीर मिस्र के खैमे में जाना भी एक राज है। अपने जांबाजों को किसी शक में न पड़ने दो और किसी से जिक्र तक न हो कि रात को क्या हुआ था। अली बिन सफियान की काबिलियत और कारनामों से ये कमांडर आगाह था, मुतमईन हो गया और उसने अपने दस्ते के शुकूक रफा कर दिए। अगले रोज सलाहुद्दीन अय्यूबी दोपहर का खाना खा रहा था कि उसे इत्तला दी गई कि नाजी मिलने आया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी खाने से फारिग होकर नाजी से मिला। नाजी का चेहरा बता रहा था कि घबराया हुआ है और गुस्से में भी है। उसने हकलाने के लहजे में कहा, काबिल सद एहतराम अमीर, क्या यह हुक्म आपने जारी किया है कि सूडानी मुहाफिज फौज की 50,000 नफरी मिस्र की उस फौज में मदगम कर दी जाए जो हाल ही में तैयार हुई है? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तहम्मुल से जवाब दिया, हाँ नाजी, मैंने कल सारा दिन और रात का कुछ हिस्सा सर्फ करके और बड़ी गहरी सोच विचार के बाद ये फैसला तहरीर किया है कि जिस फौज के तुम सालार हो उसे मिस्र की फौज में इस तरह मदगम कर दिया जाए कि हर दस्ते में सूडानियों की नफरी सिर्फ 10% हो। और तुम्हें ये हुक्म भी मिल चुका होगा कि तुम अब उस फौज के सालार नहीं होगे, तुम फौज के मरकजी दफ्तर में आ जाओगे। नाजी ने कहा, आली मकाम, मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अगर तुम्हें यह फैसला पसंद नहीं तो फौज से अलग हो जाओ। नाजी ने कहा, मालूम होता है मेरे खिलाफ साजिश की गई है। आपके बुलंद दिमाग और गहरी नजर को छानबीन करनी चाहिए। मरकज में मेरे बहुत से दुश्मन हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मेरे दोस्त, मैंने ये फैसला सिर्फ इसलिए किया है कि मेरी इंतजामिया और फौज से साजिशों का खतरा हमेशा के लिए निकल जाए, और मैंने ये फैसला इसलिए किया है कि फौज में किसी का ओहदा कितना ही ऊंचा क्यों ना हो और कितना ही अदना क्यों ना हो, वो शराब न पिए, हुल्लड़बाजी न करे और फौजी जश्नों में नाच गाने न हो। नाजी ने कहा, लेकिन आली जाह, मैंने हुजूर से इजाजत ले ली थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, और मैंने शराब और नाच गाने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी थी कि उस फौज को उसकी असल हालत में देख सकूं जिसे तुम मिल्लत इस्लामिया की फौज कहते हो। मैं 50,000 नफरी को बरतरफ नहीं कर सकता। मिस्री फौज में उसे मदगम करके उसके किरदार को सुधार दूंगा। और ये भी सुन लो कि हम में कोई मिस्री, सूडानी, शामी और अजमी नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा झंडा एक और मजहब एक है। नाजी ने कहा, अमीर आली मर्तबत ने यह तो सोचा होता कि मेरी हैसियत क्या रह जाएगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, वही जिसके तुम अहल हो। अपने माजी पर खुद ही निगाह डालो। जरूरी नहीं कि अपनी कारस्तानियों की दास्तान मुझसे सुनो। फौरन वापस जाओ, अपनी फौज की नफरी, सामान, जानवरों, सामान खुर्दनोश वगैरह के कागजात तैयार करके मेरे नायब के हवाले कर दो। 7 दिन के अंदर अंदर मेरे हुक्म की तामील मुकम्मल हो जाए। नाजी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी मुलाकात के कमरे से निकल गया। ये बात नाजी के खुफिया हरम में भी पहुंच गई थी कि ज़िकोई को अमीर मिस्र ने रात भर का शर्फ बारियाबी बख्शा है। ज़िकोई के खिलाफ हसद की आग पहले ही फैली हुई थी। उसे आए अभी बहुत थोड़ा अरसा गुजरा था, लेकिन नाजी पहले रोज से ही उसे अपने साथ रखने लगा था। उसे जरा सी देर के लिए भी अपने उस हरम में नहीं जाने दिया था जहां उसकी दिल पसंद नाचने वाली जवान लड़कियां रहती थीं। ज़िकोई को उसने अलग कमरा दिया था। उन्हें ये तो मालूम नहीं था कि नाजी उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी को मोम करने की ट्रेनिंग दे रहा है और वो किसी बहुत बड़े तकरीबी मंसूबे पर काम कर रहा है। ये रक्कासाएं ये देखकर जल भुन गई थीं कि ज़िकोई ने नाजी पर कब्जा कर लिया है और उसके दिल में उनके खिलाफ नफरत पैदा कर दी है। हरम की 2 लड़कियां ज़िकोई को ठिकाने लगाने का सोचती रहती थीं। अब उन्होंने देखा कि ज़िकोई को अमीर मिस्र ने भी इतना पसंद किया है कि उसे रात भर अपने खैमे में रखा है, तो वो पागल सी हो गईं। उसे ठिकाने लगाने का वाहिद तरीका कत्ल था। कत्ल के 2 ही तरीके हो सकते थे, जहर या किराए का कातिल जो उसे सोते में कत्ल कराए। दोनों तरीके मुमकिन नहीं थे
क्योंकि ज़िकोई बाहर नहीं निकलती थी और जहर देने के लिए उस तक रसाई नहीं हो सकती थी। उन दोनों ने हरम की सबसे ज्यादा चालाक मुलाजिमा को एतमाद में ले रखा था। उसे इनाम इकराम देती रहती थी। जब हसद की इंतहा ने उनकी आंखों में खून उतार दिया तो उन्होंने उस मुलाजिमा को मुंह मांगे इनाम का लालच देकर अपना मुद्दा बयान किया। ये मुलाजिमा बड़ी खुर्रांट और मंझी हुई औरत थी। उसने कहा कि सालार की रिहाइश गाह में जाकर ज़िकोई को जहर देना मुमकिन नहीं। मौका महल देखकर उसे खंजर से कत्ल किया जा सकता है, उसके लिए वक्त चाहिए। उसने वादा किया कि वो ज़िकोई की नक्लो हरकत पर नजर रखेगी, हो सकता है कोई मौका जल्द निकल आए। उस जराइम पेशा औरत ने यह भी कहा कि अगर कोई मौका न निकला तो हशीशीन की मदद हासिल की जाएगी, मगर वो मुआवजा बहुत ज्यादा लेते हैं। दोनों लड़कियों ने उसे यकीन दिलाया कि वो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने को तैयार हैं। नाजी बेहद गुस्से के आलम में अपने कमरे में टहल रहा था। ज़िकोई उसे ठंडा करने की बहुत कोशिश कर चुकी थी, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ज़िकोई ने चौथी बार कहा, आप मुझे उसके पास जाने दें, मैं उसे शीशे में उतार लूंगी। नाजी ने गरज कर कहा, बेकार है, वो कमबख्त हुक्मनामा जारी कर चुका है जिस पर अमल भी शुरू हो चुका है। मुझे उसने कहीं का नहीं रहने दिया, उस पर तुम्हारा जादू नहीं चल सका। मुझे मालूम है कि मेरे खिलाफ ये साजिश करने वाले कौन लोग हैं। वो मेरी उभरती हुई हैसियत से हसद करते हैं। मैं अमीर मिस्र बनने वाला था, मैंने यहाँ के हुक्मरानों पर हुकूमत की है, हालांकि मैं मामूली सा सालार था, अब मैं सालार भी नहीं रहा। उसने दरबान को अंदर बुलाकर कहा कि औरवश को बुला लाए। उसका हमराज और नायब औरवश आया तो नाजी ने उसके साथ भी उसी मौजू पर बात की। उसे वो कोई नई खबर नहीं सुना रहा था। औरवश के साथ वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के नए हुक्मनामे पर तफसीली तबादला ख्याल कर चुका था, मगर दोनों उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं सोच सके थे। अब उसके दिमाग में एक कार्रवाई आ गई थी। उसने औरवश से कहा, मैंने जवाबी कार्रवाई सोच ली है। औरवश ने पूछा, क्या? नाजी ने कहा, बगावत। औरवश चुपचाप उसे देखता रहा। नाजी ने कहा, तुम हैरान हो गए हो, क्या तुम्हें शक है कि ये 50,000 सूडानी फौज हमारी वफादार नहीं? क्या ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की निस्बत मुझे और तुम्हें अपना हाकिम और बही खां नहीं समझती? क्या तुम अपनी फौज को यह कहकर बगावत पर आमादा नहीं कर सकते कि तुम्हें मिस्रियों का गुलाम बनाया जा रहा है और मिस्र तुम्हारा है? औरवश ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने इस इक़दाम पर गौर नहीं किया था। बगावत का इंतजाम एक इशारे पर हो सकता है, लेकिन मिस्र की नई फौज बगावत को दबा सकती है और उस फौज को कुमक भी मिल सकती है। हुकूमत से टक्कर लेने से पहले हमें हर पहलू पर गौर करना चाहिए। नाजी ने जवाब दिया, मैं गौर कर चुका हूँ। मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूँ। तुम 2 पयाम्बर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। आओ मेरी बात गौर से सुन लो। ज़िकोई, तुम अपने कमरे में जाओ। ज़िकोई अपने कमरे में चली गई और वो दोनों सारी रात अपने कमरे में बैठे रहे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोनों फौजों को मदगम करने का वक्त 7 रोज मुकर्रर किया था। कागजी कार्रवाई होती रही। नाजी पूरी तरह ताउन करता रहा। 4 रोज गुजर गए थे। इस दौरान नाजी एक बार फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी से मिला, लेकिन उसने कोई शिकायत न की। तफसीली रिपोर्ट देकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुतमईन कर दिया कि 7वें रोज दोनों फौजें एक हो जाएंगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी के नायबीन ने भी उसे यकीन दिलाया कि नाजी दयानतदारी से ताउन कर रहा है, मगर अली बिन सफियान की रिपोर्ट किसी हद तक परेशान कुन थी। उसकी इंटेलिजेंस सर्विस ने रिपोर्ट दी थी कि सूडानी फौज के सिपाहियों में बेइत्मीनानी और अबतरी सी पाई जाती है। वो मिस्री फौज में मदगम होने पर खुश नहीं। उनके दरमियान ये अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि मिस्री फौज में मदगम होकर उनकी हैसियत गुलामों की सी हो जाएगी, उन्हें माल गनीमत भी नहीं मिलेगा और उनसे बारबरदारी का काम लिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें शराब नोशी की इजाजत नहीं होगी। अली बिन सफियान ने ये रिपोर्टें सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंचा दी। अय्यूबी ने उसे कहा कि ये लोग तवील मुद्दत से ऐश कर रहे हैं, इन्हें नई तब्दीली यकीनन पसंद नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि वो नए हालात और माहौल के आदी हो जाएंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा, उस लड़की से मुलाकात हुई या नहीं? अली ने जवाब दिया, नहीं, उससे मुलाकात मुमकिन नजर नहीं आती। मेरे आदमी नाकाम हो चुके हैं। नाजी ने उसे कैद कर रखा है। अगली रात का वाकया है। रात अभी अभी तारीख हुई थी। ज़िकोई अपने कमरे में थी। नाजी और वश के साथ अपने कमरे में था। उसे घोड़ों के कदमों की आवाजें सुनाई दी। उसने पर्दा हटाकर देखा। बाहर के चिरागों की रोशनी में उसे 2 घुड़सवार घोड़ों से उतरते दिखाई दिए। लिबास से वो ताजिर मालूम होते थे।
लेकिन वो घोड़ों से उतर कर नाजी के कमरे की तरफ चले तो उनकी चाल बताती थी कि ये ताजिर नहीं। इतने में औरवश बाहर निकला। दोनों सवार उसे देखकर रुक गए और औरवश को सिपाहियों के अंदाज से सलाम किया। औरवश ने उनके गिर्द घूमकर उनके लिबास का जायजा लिया, फिर उन्हें कहा कि हथियार दिखाओ। दोनों ने फुर्ती से चुके खोले और हथियार दिखाए। उनके पास छोटी तलवारें और एक एक खंजर था। औरवश उन्हें अंदर ले गया। दरबान एक तरफ खड़ा था। ज़िकोई गहरी सोच में खो गई। वो कमरे से निकली और नाजी के कमरे का रुख किया, मगर दरबान ने उसे दरवाजे पर रोक लिया और कहा कि उसे हुक्म मिला है कि किसी को अंदर न जाने दूं। ज़िकोई को वहां ऐसी हैसियत हासिल हो गई थी कि वो कमांडरों पर भी हुक्म चलाने लगी थी। दरबान के रोकने से वो समझ गई कि कोई खास बात है। उसे याद आया कि 2 रातें पहले नाजी ने उसकी मौजूदगी में औरवश से कहा था, मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूं, तुम 2 पयाम्बर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। और फिर उसने ज़िकोई को अपने कमरे में चले जाने को कहा था और उसने बगावत की बातें भी की थीं। ये सब कुछ सोचकर वो अपने कमरे में वापस चली गई। उसके और नाजी के खास कमरे के दरमियान एक दरवाजा था जो दूसरी तरफ से बंद था। उसने उस दरवाजे के साथ कान लगा दिए। उधर की आवाजें धीमी थीं। उसे कोई बात समझ न आई। कुछ देर बाद उसे नाजी की बड़ी साफ आवाज सुनाई दी। उसने कहा, आबादियों से दूर रहना। अगर कोई शक में पकड़ने की कोशिश करे तो सबसे पहले ये पैगाम गायब करना, जान पर खेल जाना। जो भी रास्ते में हायल हो उसे खत्म कर देना। तुम्हारा सफर 4 दिनों का है। 3 दिनों में पहुंचने की कोशिश करना। समत याद कर लो, शुमाल मशरिक। दोनों आदमी बाहर निकले। ज़िकोई भी बाहर आ गई। उसने देखा कि वो दोनों घोड़ों पर सवार हो रहे थे। नाजी और औरवश भी बाहर खड़े थे। सवारों को अलविदा कहने निकले होंगे। सवार बहुत तेजी से रवाना हो गए। नाजी ने ज़िकोई को देखा तो उसे बुलाकर कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, काम बहुत हैं, तुम आराम करो। अगर अकेले दिल न लगे तो हरम में घूम फिर आना। ज़िकोई ने कहा, हाँ, जब से आई हूँ बाहर नहीं निकली। नाजी और औरवश चले गए। ज़िकोई ने चुगा पहना, कमरबंद में खंजर उड़सा और हरम की तरफ चल पड़ी। वो जगह चंद 100 गज दूर थी। वो नाजी पर यह जाहिर करना चाहती थी कि वो हरम में गई थी। दरबान को भी उसने यही बताया। हरम में दाखिल हुई तो वहां के रहने वालियों ने उसे हैरान होकर देखा। वो पहली दफा वहां गई थी। सबने उसका इस्तकबाल एहतराम और प्यार से किया। उन 2 लड़कियों ने भी उसे खुशामदीद कहा जो उसे कत्ल करवाना चाहती थी। ज़िकोई सबसे मिली, हर एक के साथ बातें की और वापस चल पड़ी। वो खुर्रांट मुलाजिमा भी वहीं थी जिसे उसके कत्ल के लिए कहा गया था। उसने ज़िकोई को बड़ी गौर से देखा। ज़िकोई बाहर निकल गई। हरम वाले मकान और नाजी की रिहाइश गाह का दरमियानी इलाका ऊंचा नीचा था और वीरान। ज़िकोई हरम से निकली तो नाजी की रिहाइश गाह की तरफ जाने की बजाय तेज तेज दूसरी समत चल पड़ी। उधर एक पगडंडी भी थी, लेकिन ज़िकोई उससे जरा दूर हटकर जा रही थी। उससे 15-20 कदम पीछे एक स्याह साया चला जा रहा था। वो कोई इंसान ही हो सकता था, मगर सर से पांव तक एक लिबादे में लिपटा होने की वजह से स्याह भूत लगता था। ज़िकोई की रफ्तार तेज हुई तो उस भूत ने अपनी रफ्तार उससे भी तेज कर दी। आगे घनी झाड़ियां थीं। ज़िकोई उनमें रूपोश हो गई। स्याह भूत भी झाड़ियों में गायब हो गया। वहां से कोई 250-300 गज आगे सलाहुद्दीन अय्यूबी की रिहाइश गाह थी, जिसके इर्द गिर्द फौज के आला रुतबों के अफराद रहते थे। ज़िकोई का रुख उधर ही था। वो घनी झाड़ियों में से निकली ही थी कि बाईं तरफ से स्याह भूत उठा। चांदनी बड़ी साफ थी, फिर भी उसका चेहरा नजर नहीं आता था। उसके पांव की आहट भी नहीं थी। भूत का हाथ ऊपर उठा, चांदनी में खंजर चमका और बिजली की तेजी से खंजर ज़िकोई के बाएं कंधे और गर्दन के दरमियान उतर गया। ज़िकोई की चीख न निकली, खंजर उसके कंधे से निकल गया। ज़िकोई ने इतना गहरा जख्म खाकर भी निहायत तेजी से अपने कमरबंद से खंजर निकाला। भूत ने उस पर दूसरा वार किया तो ज़िकोई ने उसके खंजर वाले बाजू को अपने बाजू से रोककर अपना खंजर भूत के सीने में घोंप दिया। उसे चीख सुनाई दी जो किसी औरत की थी। ज़िकोई ने अपना खंजर खींचकर दूसरा वार किया जो भूत के पेट में उतर गया। उसके साथ ही उसके अपने पहलू में खंजर लगा, लेकिन ज्यादा गहरा नहीं उतरा था। भूत चकरा कर गिरा। ज़िकोई ने ये नहीं देखा कि उस पर हमला करने वाला कौन था। वो दौड़ पड़ी। उसके जिस्म से खून बहुत तेजी से बह रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी का मकान उसे चांदनी में नजर आने लगा। आधा फासला तय करके उसे चक्कर आने लगे। उसकी रफ्तार सुस्त होने लगी। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अली, अय्यूबी। उसके कपड़े लाल सुर्ख हो गए थे और वो बड़ी मुश्किल से कदम घसीट रही थी। उसकी मंजिल थोड़ी ही दूर रह गई थी, जहां तक पहुंचना उसके लिए मुमकिन नजर नहीं आता था। वो मुसलसल सलाहुद्दीन अय्यूबी और अली बिन सुफियान को पुकारे जा रही थी। करीब कहीं एक गश्ती संतरी फिर रहा था। उसे उसकी आवाजें सुनाई दी तो वो दौड़ कर पहुंचा।
ज़िकोई उस पर गिर पड़ी और कहा, मुझे अमीर मिस्र तक पहुंचा दो, जल्दी, बहुत जल्दी। संतरी ने उसका खून देखा तो उसे पीठ पर लाद कर दौड़ पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।